Hello guys, this is Chandradeep Kumar and you are watching Choklo Classes. In the chapter of fractions, we have already discussed about the what is fractions, types of fractions, conversion of mixed fraction into improper fraction, conversion of improper fraction into mixed fraction, conversion of unlike fraction into like fractions, and comparison of fractions. Now in this tutorial, we are going to discuss about the addition of fractions and subtraction of fractions. सबसे पहले हम लोग एडिशन देखते हैं, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे किया जाता है। अगर फ्रैक्शन लाइक हो, मींस अगर लाइक फ्रैक्शन है तो कैसे ऐड करना। सपोज वी हैव 5/3 प्लस 7/3। Here 5/3 and 7/3 both have same denominator, so both the fractions are like fractions. So we can add it very easily by writing 3 in denominator, since we have both denominator 3. And simply write as in denominator. Now add 7 plus 5 12 और denominator में 3. Now convert it into list form. So 3 4 जा 12. That means after adding 5/3 and 7/3 we will get 4 as the answer. Okay. Now see another example. Suppose we have 13/7 plus 19/7 plus 12/7. Suppose we have these three fractions which are like, okay, since we have to add this, so we can write simply 7 in denominator and write numerator as written 13 plus 19 plus 12. 13 plus 19 plus 12. 2 9 11 3 14 1 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 44/7. Now this is already list fraction, since there is no any number which can divide both numerator and denominator exactly. क्योंकि यहाँ पे अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 44 और 7 को exactly डिवाइड कर सके, इसलिए ये लिस्ट फॉर्म में है. Now we see here that 44 which is a numerator and greater than the denominator 7. यहाँ पे 44 denominator से greater है, so we can convert it into mixed fraction. So after converting it into mixed fraction, we will get 7 6 are 42 and 2 as a remainder and 7 as a denominator. So we have 6 and 2/7 as an answer. After adding 13/7, 19/7 and 12/7. ओके, तो ये तो था जब लाइक फ्रैक्शन है. अब लाइक के अलावे अनलाइक फ्रैक्शन हो या फिर कोई नंबर फ्रैक्शन के साथ ऐड करना हो या फिर कोई फ्रैक्शन नंबर के साथ ऐड करना हो, तो कैसे करते हैं. सबसे पहले देखते हैं जब कोई नंबर फ्रैक्शन के साथ ऐड हो. ओके, यहाँ पे 9 नंबर है और ये 3/9 एक फ्रैक्शन है. अब इसे ऐड करना है तो सिंपली अगर 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं. 9/1 is 9. Now we will convert both the fraction into like fraction. ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है. सबसे पहले like fraction में कन्वर्ट करने के लिए एलसीएम निकालते हैं डिनोमिनेटर का. सो वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 1 and 9. We get LCM as a 9. So write 1 times as a denominator 9, means एक बार डिनोमिनेटर में 9 लिख दिए. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट बोथ द डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एलसीएम विच इज 9, यानी जो दोनों डिनोमिनेटर है उसे 9 के इक्वल करना है. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है. तो यहाँ पे 1 है फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में, तो 1 को एलसीएम यानी 9 के बराबर करना है, तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो जितने टाइम्स 1 को मल्टीप्लाई किया उतने टाइम्स न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है. तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9. ओके, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन का हो गया. प्लस सेकंड फ्रैक्शन में 9 और 9 पहले से ही इक्वल है, तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 9 1 जा 9. सो वी हैव टू आल्सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, तो 3 into 1. नाउ वी हैव 9 9 जा 81 प्लस 3 1 जा 3 और फिर डिनोमिनेटर में 9. Isn't it? Now 81 plus 3
84/9. Now we have to convert it into least fraction, और लिस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को ये पता है कि वो एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एग्जैक्टली डिवाइड करे. सो हियर 9 is divisible by 3 and 84 is also divisible by 3. So we will divide it by 9. So 3 3s are 9, 3 2s are 6, 2 3 8. Now 28 and 3 are not divisible by any common number. So 28/3 is a least form, but it can be converted into mixed fraction. इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं since numerator is greater than denominator, चूंकि numerator denominator से greater है. So after converting it into mixed fraction we will get 9 and 1/3. ओके, तो ये क्या था? पहले तो ये नंबर दिया हुआ था, नंबर को फ्रैक्शन के साथ ऐड करना था, तो क्या किए, नंबर के नीचे 1 लगा दिए. ठीक है, अब हमारे पास दोनों में डिनोमिनेटर पता चल गया. तो अब इस डिनोमिनेटर की हेल्प से हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं. तो जो एलसीएम आता है उसे एक बार नीचे लिख दिए. उसके बाद फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में जितना मल्टीप्लाई करके हमें एलसीएम आता है डिनोमिनेटर में, उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी गेट 9 into 9 and similarly we get 3 into 1. Now after solving this we find 9 and 1/3 as answer. ओके, अब तीसरे टाइप्स में हम लोग देखते हैं जब दो अनलाइक फ्रैक्शन हो. ओके, सपोज वी हैव 7/5 टू ऐड विद 9/3. यहाँ पे दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है. अब जब अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसे कैसे हम लोग ऐड करेंगे वो देखते हैं. तो फर्स्ट स्टेप, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है. तो 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है. ओके, नाउ वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एलसीएम, यानी जो डिनोमिनेटर है उसे एलसीएम के बराबर लाना है. तो यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो जब 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 डिनोमिनेटर में है तो हमें न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होता है. सो वी विल गेट 3 into 7. तो फर्स्ट फ्रैक्शन का 7 into 3 आया. प्लस है तो प्लस का साइन. नाउ 9/3 है, तो यहाँ पे 3 और 3 को हमें 15 बनाना है. तो 3 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 9/5. तो न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा जब डिनोमिनेटर में करेंगे तो. Isn't it? Now after solving we will find 7 3s are 21 plus 9 5s are 45/15. Now 45 plus 21 6 66/15. Okay. Now convert it into least fraction first. Since both 66 and 15 are divisible of 3, so we will get 3 5s are 15, 3 22, just 66. Okay. Now we have 22/5, which is an improper fraction, so we have to convert it into mixed fraction. So 5 4s are 22, 5 4s are 20, 2 as a remainder and 5 in denominator. Thus we get 4 and 2/5 after adding 7/5 plus 9/3. ओके, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. तो कैसे करते हैं ये हम लोगों ने देखा. नाउ टाइप्स 4. अब फोर्थ टाइप, जब फ्रैक्शन को किसी नंबर से ऐड करना हो. सपोज वी हैव 7/5 प्लस 9. 7/5 को 9 से ऐड करना है. तो जैसा हमने सेकेंड टाइप्स में देखा था कि नंबर को फ्रैक्शन से ऐड करना था, सेम उसी तरह ये भी होगा. तो नंबर के नीचे पहले 1 लगा दिए. तो नाउ वी हैव बोथ एज अ फ्रैक्शन. नाउ वी विल फाइंड एलसीएम ऑफ 1 and 5. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 5. ओके, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई आउट करना होगा. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 by 1, यानी 7 into 1 प्लस 1 5s are 5, so we have to multiply 9 by 5. Okay.
Now we have 7 1 just 7 plus 9 5 just 45 upon 5. Now after adding 45 and 7 we get 52 upon 5, which is an improper fraction, so we have to convert it into mixed fraction. Thus after converting it into mixed fraction we will get 10 and 2 upon 5. Okay. Now let's say fifth type mixed fraction. तो उसे कैसे ऐड करना? सपोज वी हैव 5 1/3 प्लस 3 2/3. अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में इसे ऐड करना है. तो इसे सॉल्व करने का दो तरीका है कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके उसे फिर से ऐड करें, और दूसरा तरीका है कि मिक्स फ्रैक्शन का जो होल नंबर पार्ट्स है उसे फ्रैक्शन से सेपरेट कर लें, फिर दोनों को ऐड करें. तो दोनों तरीका हम लोग 1 by 1 देखते हैं. पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके सीखते हैं. तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने सीखा था. तो यहाँ पे आसानी से हम कर सकते हैं. तो उसका तरीका क्या है कि होल नंबर पार्ट्स को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो आता है मल्टीप्लाई उसे न्यूमरेटर के साथ ऐड करते हैं. यानी 5 3 जा 15 15 प्लस 1 16 अपॉन 3 प्लस सिमिलरली 3 3 जा 9 प्लस 2 11 अपॉन 3. यहाँ पे चूंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है यानी ये लाइक फ्रैक्शन है, सो वी विल सिंपली ऐड इट बाय राइटिंग 3 एज अ डिनोमिनेटर एंड 16 प्लस 11. तो 27 अपॉन 3 और ये 3 9 जा यानी ये 9 आया. और ये कैसे हुआ? तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके किए. अब हम लोग इसी को देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर पार्ट्स है उसे सेपरेट करके कैसे ऐड करते हैं. तो यहाँ से 5 और यहाँ से 3 दोनों को अलग करके ऐड करते हैं 5 प्लस 3. और चूंकि ये एडिशन है तो हमेशा प्लस ही लिखेंगे. प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3. अब ये लाइक फ्रैक्शन है और ये सिंपली नंबर है. तो यहाँ से 5 प्लस 3 8 प्लस 3 और 3 कैल्सियम 3, और लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही लिखते हैं, और फिर 1 प्लस 2. तो 8 प्लस 1 प्लस 2 3, और नीचे भी 3 आ ही है. तो ये 3 1 जा 3 कट हो गया. तो 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9. तो यहाँ से भी 9 आ रहा है और यहाँ से भी 9 आ रहा है. तो दोनों तरीका से हमें सेम आंसर आ रहा है. इसका मतलब जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो उसे हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके, या फिर मिक्स फ्रैक्शन के जो होल नंबर पार्ट्स हैं उसे फ्रैक्शन से अलग कर लें और फिर अलग अलग ऐड करके आगे बढ़े. ओके. नाउ लेट्स सी सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन किसका? फ्रैक्शन का. फर्स्ट टाइप में लाइक फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखते हैं. मींस अगर हमारे पास है 5/3 माइनस 2/3. Here 5/3 and 2/3 are like fractions. Since both have equal denominator, तो इक्वल जब भी इक्वल डिनोमिनेटर है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार डिनोमिनेटर में जो लिखा है सेम उसी को लिखना है. ओके. और फिर जो न्यूमरेटर में भी है सेम उसी को लिखना है. और साइन का ध्यान रखना है, माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे और फिर जैसे है ऊपर लिख दिए. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 5 minus 2 we get 3 and 3 in denominator also. Now 3 1 ja 3, so we get 1. Means 5/3 minus 2/3. जब 5/3 को 2/3 से माइनस किए तो हमें 1 फाइंड हुआ. Now see another example. Suppose we have 2/3 minus 7/3. अगर ऐसा हो तो सिंपली डिनोमिनेटर को एक बार लिख देना है, फिर न्यूमरेटर में जो है उसे भी लिख देना है. अब जो साइन है सेम लगाते जाना है. अब यहाँ पे समझना है, ये आप लोग पिछले क्लास में जरूर पढ़े होंगे इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे होता है. अगर इंटीजर्स ग्रेटर हो और हमें स्मॉलर में से सब्ट्रैक्ट करना है तो जो ग्रेटर का साइन होता है वही साइन रिजल्ट में भी होता है. मींस हियर 7 is greater than 2, so we will put minus sign because 7 have minus sign, isn't it? Now subtract 7 minus 2, we get 5 and 3 as a denominator. Since numerator is bigger than denominator, so it can be converted into mixed fraction. Thus we get
माइनस का साइन है तो एक बार जब माइनस का साइन लगाना है, फिर 3 1 जा 3 एंड 2 एज अ रिमाइंडर एंड 3. तो दिस इज द आंसर. ओके. नाउ सेकेंड टाइप मीन्स अगर कोई नंबर है और नंबर से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है. सपोज वी हैव 5 एज अ नंबर एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 3/7. ओके. मीन्स 5 में से 3/7 हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो इस केस में सेम जैसे एडिशन में करते हैं कि अगर फ्रैक्शन है उसके नीचे अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 डिनोमिनेटर के रूप में लिख देते हैं. नाउ वी हैव अनलाइक फ्रैक्शंस, सो वी विल टेक एलसीएम. नाउ एलसीएम ऑफ 1 and 7 is 7. Now we have to convert 1 as a 7, so we have to multiply 1 by 7. तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाकर 7 आएगा. इसलिए डिनोमिनेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई, इसलिए न्यूमरेटर में भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 5 into 7 minus 7 is already in denominator, so 7 is equals to LCM. यहाँ पे 7 इक्वल है, ये LCM के बराबर है. तो 7 1 जा 7, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ वी गेट 7 5 जा 35 minus 3 1 जा 3 and 7 एज अ डिनोमिनेटर. तो 35 में से 3 माइनस किए तो 32 और 7. यहाँ पे ये लिस्ट फ्रैक्शन में है क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो. ओके. सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. तो 7 4 जा 28, 8 4 एज अ रिमाइंडर एंड 7 एज अ डिनोमिनेटर. इस तरह हम लोग नंबर से फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर लिए. ओके. थर्ड टाइप अगर फ्रैक्शन अनलाइक हो. सपोज वी हैव 7/2 minus 5/3. Here we have unlike fraction, so we will have to find the LCM of denominator 2 and 3, which is equals to 6. 2 और 3 का LCM 6 होता है और चूंकि 2 डिनोमिनेटर में है तो हमें डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, इसलिए 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. तो 2 3 जा 6 और जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 को जो 3 से मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस, फिर 3 2 जा 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. नाउ वी हैव 7 3 जा 21 minus 5 2 जा 10 and 6 as a remainder, and after subtracting we get 11/6, which is already in this form, so we have to convert it into mixed fraction, यानी 1 5/6. Now let's see another example. Suppose we have 13/4 minus 12/6. अब इस तरह माइनस करना हो तो सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का, यानी 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है. ओके. नाउ वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल्स टू एलसीएम. सो इन फर्स्ट फ्रैक्शन वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 3 डिनोमिनेटर, यानी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 12 आएगा, और जब डिनोमिनेटर को करेंगे तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करके जितना आता है उतना यहाँ पे लिख देते हैं. ओके. माइनस 6 को 12 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो न्यूमरेटर को 2 से 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. नाउ वी गेट 39 13 3 जा 39 minus 12 2 जा 24 upon 12. Now after subtracting we will get 15/12. Now here we can convert it into list fraction since both 15 and 12 are divisible by 3. So 3 4 ja and 3 5 ja. Thus we get 5/4, which is an improper fraction, so we have to convert it into mixed fraction. Thus after converting it into mixed fraction we will get 1 and 1/4 as our answer. Okay. अब हम लोग फोर्थ स्टेप देखते हैं कि अगर फ्रैक्शन हो 5/3 सब्ट्रैक्ट करना हो कोई नंबर से, सपोज 7 है, तो सेम जैसे एडिशन में किए थे कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए. अब आगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मींस अनलाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन है तो
एलसीएम निकालते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3, यहाँ पे 3 ऑलरेडी एलसीएम के इक्वल है तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, इसलिए न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जा 5 माइनस 7 3 जा 21 अपॉन 3। Here 5 is less than 21, so we will subtract 21 minus 5, 16, and since 21 is greater than 5, चूंकि 21 ग्रेटर है 5 से, और इसलिए इसके आगे अगर माइनस का साइन है तो रिजल्ट में भी माइनस का साइन लगाएंगे, ओके, and divided by 3. Now it is already in list fraction, so we have to convert it into mixed fraction. माइनस का साइन पहले लगाना नहीं भूलना है अगर माइनस का साइन है तो, ओके, तो 3 5 जा 15, रिमाइंडर 1 and 3, तो ये आंसर प्राप्त होगा। नाउ लेट्स सी टाइप 5। अब फिफ्थ टाइप देखते हैं, जब हमें फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन दिया हो और उसे सब्ट्रैक्ट करना हो, सपोज वी हैव 5 and 1/3 माइनस 3 and 2/3, अगर इस तरह का हो तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसे सॉल्व करने का दो तरीका है, जैसा एडिशन में आप लोगों ने देखा कि पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है फिर उसे सॉल्व करें, या फिर जो होल नंबर पार्ट्स है उसे अलग कर लें मिक्स फ्रैक्शन से और फिर जाकर सॉल्व करें। तो हम लोग दोनों तरीके से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला तरीका है कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर न्यूमरेटर को प्लस करते हैं, यानी 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16/3 माइनस है तो माइनस, फिर 3 3 जा 9 प्लस 2 11/3। तो इसका जब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए तो ये आया और इसका जब किए तो ये आया। अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है और लाइक फ्रैक्शन में कुछ नहीं करना है, सिंपली एक बार जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में लिख देते हैं और फिर न्यूमरेटर को जैसे वैसे ही लिखकर सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 माइनस 5/3, अब ये चूंकि लिस्ट फ्रैक्शन में है और न्यूमरेटर बिगर है तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3 and 2 is a remainder and 3 in a denominator। तो इस तरह हम लोग सॉल्व किए। तो ये तरीका था कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके किए। अब दूसरा तरीका है इसी का कि मिक्स फ्रैक्शन का जो होल नंबर पार्ट्स है उसे सेपरेट करना है, यानी 5, अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर 3, तो इसमें 5 था और ये 3 था तो इसको अलग सेपरेट कर लिए, ओके। अब चूंकि सब्ट्रैक्शन है तो भी हमें यहाँ पे प्लस ही करना है, ओके। नाउ वी हैव 1/3 माइनस 2/3, ओके। thus 5 minus 3 2 plus 1/3 and 2/3 both are like fraction, so 3 1 minus 2, thus we have 2 plus 1 minus 2, यानी स्मॉलर में बिगर को माइनस करना है तो 2 minus 1 और 2 बिगर है, इसका माइनस का साइन है तो -1/3, ओके। नाउ 2 डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, प्लस और माइनस दो साइन एक साथ है लेकिन अपोजिट है तो हमें माइनस लगाना होता है। प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, ये याद रखना है सबको। प्लस और माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, यानी जब दो साइन सेम हो तो हमेशा प्लस और जब दो साइन अलग अलग हो तो हमेशा माइनस। तो यहाँ पे माइनस हुआ 1/3। नाउ 1 and 3 का एलसीएम 3, तो 1 को एलसीएम के इक्वल लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर में भी किए मल्टीप्लाई, 2 3 जा माइनस 3 ऑलरेडी 3 के इक्वल है तो 1 into 1, तो यहाँ से आ रहा है 6 minus 1/3 यानी 5/3 आ रहा है ना सेम। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए तो 1 and 2/3, तो इस तरह से भी हमें सेम आंसर निकल रहा है, ओके। तो दो तरीका, एक है कि मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें फिर उसे सॉल्व करें, या फिर मिक्स फ्रैक्शन के जो होल नंबर पार्ट्स हैं उसे फ्रैक्शन से सेपरेट करके सॉल्व करें,
So in this tutorial we have discussed about the addition and subtraction of the fraction, and in next tutorial we will discuss about the multiplication and division of the fraction. अगले ट्यूटोरियल में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखेंगे कि फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है.